Good afternoon, everyone. Today is 16th of October, and we would be discussing the important articles of the day. My name is Mayur, and I'm senior faculty at CSAP. So, the first article that we are going to discuss is about World Food Day, and with this article, we would venture into, or we would discuss some of the aspects of food security in India. Then we will see the second article, which is about cesium 137 contamination. ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इसका कंटेनी कंटामिनेशन हुआ है इंडोनेशिया में। तो इंडिया हैज रिस्पॉन्डेड टू दिस कंटामिनेशन। इट्स काइंड ऑफ अ disaster. Third article that we are going to see is regarding 2030 Commonwealth Games. India is going to host 2030 Commonwealth Games. Fourth article is about WTI founder Vivek Menon, who became the first Asian to chair a key IUCN panel, International Union for Conservation of Nature. And last article would be the India nears the goal of Naxal-free Bharat. This is the QR code of Telegram channel of CSAP. You may consider joining it by scanning in order to get access to all the information documents and the PDFs. So let's get started. The first article is about the World Food Day. Like I expressed during the introduction that this is largely concerns itself with food security. So globally, 16th October, that means today, is celebrated as World Food Day. Now, the reason is this celebration of such days gives the opportunity to the world to look and introspect towards the pressing issue of food necessity, food being the absolute human right. 2025 का जो थीम है that is hand in hand for better foods and better future. जो इसका इम्पैक्ट जो है वो SDG 2 के ऊपर होगा। SDG 2 जो है that is regarding zero hunger. The focus would be on collaboration, sustainability, and nutrition, not just a free or making food available. It has to be sustainable and the nutritious one. There's one interesting case of India. The India's paradox is kind of has become a global case study. India is currently a global agricultural powerhouse, also with the largest public food distribution system in the world, and yet it has highest number of undernourished people worldwide. तब आपके पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी आपके पास होता है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड, सबसे ज्यादा ग्रास रूट लेवल तक जाने वाला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपके पास है, और उसके बावजूद भी दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भी आप ही के पास है. सो दैट इज व्हाई दिस केस ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द पैराडॉक्स. मतलब इंडिया इंडिया फुल वेयर हाउसेस जिसमें खाना स्टोर किया जाता है, लेकिन हंग्री पीपल के सारे स्टोर हाउसेस वेयर हाउसेस भरे पड़े, लेकिन पेट खाली है लोगों का. ऑलराइट. द इवोल्यूशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी था वो दो फेजेस में हुआ. टू फेजेस. जो फेज वन है दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 से लेकर 1970s के बीच में. इससे क्या हुआ कि इट बूस्टेड सीरियल आउटपुट एंड अवॉइडेड द फमाइंस. जो कैलोरी सिक्योरिटी उसको तो अचीव कर लिया. जो ना जो सेकंड स्टेज था दैट वाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. उसने सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो है दे बिकेम लीगल एंटाइटलमेंट्स फॉर 810 मिलियन पीपल. मतलब लगभग 81 करोड़ लोगों के लिए ये लीगल राइट बन गया टू
get subsidized food grains. Okay. आउटकम क्या बोला कि it has ensured the availability and access to staple food जो है ना ग्रेन्स उसको. अब there are certain gaps that have existed in case of India, and there is also some critique regarding India's nutritional system. फर्स्ट पॉइंट इज कि न्यूट्रिशनल यूटिलाइजेशन में फेलियर आया है. मतलब इंडिया क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है. फिक्स क्वांटिटी ऑफ राइस, फिक्स क्वांटिटी ऑफ वेट ये प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर नहीं करता. मतलब प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना जा रहा है इसके बारे में ज्यादा एम्फेसिस नहीं करता. इंडिया में हिडन हंगर मतलब क्या, कि भाई कैलोरीज तो पूरे पूरे मिल रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन उसके साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या अदर न्यूट्रिएंट्स है वो डेफिशिएंसी है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज हिडन हंगर. ऊपर से लगता है कि कुछ नहीं, सब बढ़िया है, लेकिन अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है. जो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स है 2024 का, उसके कुछ की इंडिकेटर है जिसमें ओवरऑल जो ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर का स्कोर है, इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी. मतलब आउट ऑफ 127 इंडिया इज रैंक्ड एट 105. और इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि परसिस्टेंट हंगर है. इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग ज्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग ज्यादा है, एनामिक विमेन बहुत ज्यादा है. तो व्हाट आर द स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड. फर्स्ट इज हमारे यहाँ पे डाइटरी मोनोकल्चर है. एक ही तरीके का खाना हमेशा दिया जाता है, ओवर ओवर डिपेंडेंस भी है उसके ऊपर, आइदर राइस या आइदर व्हीट के ऊपर. सेकंड स्ट्रक्चरल इशू इज रिगार्डिंग द लॉसेस विच वी बेयर आफ्टर द प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. जो पीडीएस सिस्टम है उसी के अंदर लीकेजेस है, करप्शन है, फिर फूड इन्फ्लेशन है. मतलब जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही एक्सेस टू डाइवर्स एंड हेल्दी डाइट्स कम हो जाएगा. फिफ्थ इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज. मतलब अचानक बारिश का इधर उधर हो जाना, बीच में ही फ्लड्स आ जाना, बीच में ही हीट वेव्स आ जाना. दिस ऑल इम्पैक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. So what is the way forward? How can we deal with this situation? First, डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर. मतलब जिसमें अगर राइस व्हीट के ऊपर रिलाय ना करते हुए मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स इनको भी प्रोड्यूस किया जाए, सो दैट एग्रीकल्चर इज डाइवर्सिफाइड. ऑल्सो जो ग्रेन्स हम यूज करते हैं, दे दोज कैन बी फोर्टिफाइड. Those millets can be fortified for PDS. The second thing that can be done is the strategies that we deploy for agriculture can be made climate smart. Meaning क्या, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट varieties है, जो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है, एंड जो प्रैक्टिसेस है फार्मिंग की, उनको सस्टेनेबल बनाया जाए. We also need multi-sectoral integration, like link food policy with WASH, with healthcare, with maternal education, and also the gender empowerment, improving women's access to the nutrition, healthcare, and decision making. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का अब तक का जो फूड पॉलिसी रहा है, फूड सिक्योरिटी हो, पीडीएस हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, दैट हैज ensured the survival of Indian farmers or Indian people, but not the well-being. This World Food Day reminds that the ending hunger is not about filling stomachs, but nourishing the lives. To achieve zero hunger and human dignity, India must champion the dietary diversity, systematic reforms, and climate resilience in order to ensure that no one is merely fed but truly nourished. I would ask you to pause the video, take a pause of 10 seconds, and try and solve this question.
The second article is about cesium 137 contamination. India has proved that it is can be called as the first responder in case of disasters. सीसियम 137 क्या है? सीसियम 137 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो इंडोनेशिया में मिला है। एक्चुअली यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, they detected the cesium 137 in Indonesian spices and frozen shrimp, leading to the product recalls and import restrictions. तो जो श्रिम्प स्पाइसेस इंडोनेशिया से यूएस गए थे उसमें सीजियम 137 मिला। तो हुआ क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटेप है जो कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रियल गैस एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में, बट इट इज हजार्डस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर और लीकेज। तो इसमें इंडिया ने इमिडिएटली रिस्पॉन्स किया कि इंडिया ने जो प्रूजियन ब्लू होता है, एक तरीके का कैप्सूल है, विच इज काइंड ऑफ एन एंटीडोट, उसके ऊपर का सोल्यूशन है सीजियम 137 के ऊपर का, उसको इमिडिएटली पहुंचा दिया इंडोनेशिया में, इंडिया ने। तो अबाउट सीजियम जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ये कुछ नहीं है, एक वाइटिश सिल्वरी वाइट कलर का सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन रिलीज करता है। ओके, उसका हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है, जो एक्सटर्नल एक्सपोजर अगर आपका हो जाता है सीजियम 137 से, दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन। कंटिन्यूस अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहा, दैट कैन इवन कॉज द डेथ। ओके, तो अगर अगर लेट्स से कि ये सीजियम अगर एयर में रिलीज हो गया, if it is released in the air, that can travel long distances before settling on the ground or water. Most cesium compounds actually dissolve in water, ना तो वाटर को भी कंटामिनेट कर देते हैं वो। तो इसमें इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस कैसा रहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जकार्ता, मतलब इंडोनेशिया में जो इंडियन एम्बेसी है वो हो, दे इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिक्वेस्ट। ये रिस्पॉन्ड करना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जाना, ये हाईलाइट कर देता है कि इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन, कोऑपरेशन इन डिजास्टर रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होगा। ऑल्सो जो इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर थ्रू इट्स एक्शन इन ह्यूमैनिटेरियन एंड इमरजेंसी सिचुएशन, वो भी हाईलाइट हो जाता है। ओके, ऑलराइट। तो इस सब का ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होगा, एक, इंडियाज लीडरशिप इन हेल्थ फॉर ऑल, जो इंडिया का फिलोसॉफी है, इट इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इट विल by combining the modern medical response with traditional medicine diplomacy. It reflects integration of science, of diplomacy, and humanitarianism in India's foreign policy. और जो रीजनल हेल्थ सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया। Try and answer this question. Take 30 seconds and try and answer this question. Please mention your answer in the comment section. थर्ड आर्टिकल इज, इंडिया 2030 में कॉमनवेल्थ को होस्ट करेगा इन अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद को रिकमेंड किया एज अ होस्ट सिटी। कंटेक्स्ट क्या है, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2030, proposed host is अहमदाबाद इन गुजरात। ये जो डिसीजन है, इट इज रिकमेंडेड बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू बी फॉर्मली अप्रूव्ड एट द जनरल असेंबली इन ग्लासगो नवंबर 26, 2025।
है ना? इट मार्क्स द सेंटेनरी एडिशन 100 years ऑफ द CWG। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से? वो सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो पहले ब्रिटेन के अंडर कॉलोनाइज्ड थे। ब्रिटेन had colonized these countries. Now these countries post their independence, like they have formed a group as Commonwealth countries। तो उनके बीच में जो वो स्पोर्ट इवेंट होता है वो होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक इंडिया स्पोर्टिंग डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल एम्बिशंस, है ना? ये 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है वो इंडिया होस्ट करना चाहता है, एंड इट विल बी सीन द कॉमनवेल्थ गेम का होस्टिंग विल बी सीन एज अ प्रीलूड टू दैट 2036 decision, 2036 Olympic Games. The decision reflects that India's growing confidence, infrastructure readiness, and commitment to the global sporting partnerships. लास्ट टाइम CWG मतलब कॉमनवेल्थ जब इंडिया में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया इन 2010। 20 साल के गैप के बाद में 2030 में उनको होस्ट किया जाएगा। ये दो कॉमनवेल्थ का गेम जो था ना, इट वाज मार्ड बाय द करप्शन एंड डिलेज। ओके, बट 20 साल बाद 2030 वाला जो इंडिया है, इट्स the 2030 wala Commonwealth game is the opportunity that we have to showcase a new India capable of all the transparent and world-class execution. इसका strategic importance क्या है? First, opportunity to prove reliability and transparency in large-scale events management. It will strengthen India's image as trusted global host, and it will enhance the sports diplomacy. Okay, and जो कॉम्प्लीमेंट इट विल कॉम्प्लीमेंट अदर इंटरनेशनल होस्टिंग प्लान्स, जैसे कि 2027 में विमेन वॉलीबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इंडिया में होना है। 2028 में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया में होना है। तो ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या हो गया? एक, जो इंडिया का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है ना, उसको स्ट्रेंथन करेगा, एंड जो स्पोर्ट डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल स्पोर्ट डिप्लोमेसी, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। ऐसे जब कोई गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो जहां कहाँ इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस शहर का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलता है, टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एंड ये सारा इवेंट स्पोर्ट्स कल्चर को एनकरेज करता है, यूथ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, कि जेंडर इंक्लूजन इन एथलेटिक्स को एनकरेज करता है, एंड जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है विकसित भारत बाय 2047, उसके साथ अलाइन करता है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस MCQ। प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ये जो फोर्थ आर्टिकल है, इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस इस बात का है कि फर्स्ट टाइम कोई एशियन है कि जो IUCN के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का चेयर बना है ना? इनका नाम है विवेक मेनन। तो इस अभी के लिए फैक्चुअल बेसिस पे इसको समझ लो। विवेक मेनन जो है, हु इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI जो है, ही हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। He is the first Asian to hold this prestigious global conservation position. This announcement was made during IUCN World Congress 2025 in Abu Dhabi, UAE, अभी जो recently conclude हुआ। IUCN के बारे में थोड़ा सा, IUCN क्या है? एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दिस IUCN इज नोन फॉर पब्लिशिंग IUCN रेड लिस्ट, जो एंडेंजर्ड लिस्ट आती है ना, वल्नरेबल स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वो वाला लिस्ट, रेड डेटा बुक जिसे कहते हैं, वो IUCN पब्लिश करता है। ये जो स्पेशीज सर्वाइवल कमीशन है, जिसके ये सर चीफ बने, इट इज वन ऑफ द 6 एक्सपर्ट कमीशंस अंडर IUCN, and it comprises over 9,000 experts from around the world. It advises IUCN on matter concerning species conservation,
and biodiversity management. And it not only does that, it also prepares and maintains the red list, which assessing extinction risk of species. Here is the fourth MCQ. Please solve this MCQ and mention your answers in the comment section. Try and use elimination technique. Okay. Last article is about India nears the goal of नक्सल फ्री भारत. अगर आपको पता हो तो रिसेंटली जो वन ऑफ द हाईएस्ट कमांडर था नक्सल मूवमेंट का, उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के सामने हथियार सरेंडर कर दिया है. एंड इट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट ब्लो टू द नक्सल मूवमेंट. ओके, तो उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है. A significant development towards eradicating left-wing extremism, the government of India has reduced the number of most affected district of Naxalism from 6 to 3. अब सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जो हाईली अफेक्टेड है, मतलब मोस्ट अफेक्टेड है. जो नंबर ऑफ एलडब्ल्यूबी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है ओवरऑल हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 18 to 11 नाउ. And the government aims to achieve a Naxal-free India by March 31, 2026. 2026 के मार्च तक इंडिया को नक्सल फ्री कर देना है. Key facts and achievements: leadership and policy framework. Under the leadership of Honorable Prime Minister and guidance of Union Home Minister, a multi-pronged national action plan and policy against LWE has been rigorously implemented. Operational success in 2025. इसी साल 312 जो माओइस्ट है उनको खत्म किया गया. 836 कार्डर्स जो थे उनको अरेस्ट कर दिया गया एंड लगभग 1700 से सरेंडर कर दिया, विच इंक्लूड सीनियर मोस्ट माओइस्ट लीडर्स. जो नेशनल एक्शन प्लान एंड पॉलिसी था वो था कि फर्स्ट था इंटेलिजेंस बेस्ड पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस, देन सेकंड स्विफ्ट डोमिनेशन ऑफ सिक्योरिटी वैक्यूम एरियाज, थर्ड इज टारगेटिंग ऑफ लीडरशिप एंड ओवरग्राउंडेड नेटवर्क्स, fourth is countering extremist ideology through awareness and rehabilitation, rapid infrastructure development and saturation of welfare schemes in affected areas, and फिर फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट को ब्लॉक कर देना. This is the final MCQ of the day. Please try and solve this. You can pause the video and mention your answers in the comment section. These are our one-stop solution for APSC and UPSC. These are the smart books. Now these are available also in SMS Medium. So here is the contact details. You can connect on this number to get access to your smart book set. Thank you very much. See you tomorrow. Have a good day.